man loses his thinking power. So anger. So that is why desire, even Buddha said the same thing. Desire is the root cause of all trouble and all problems in life. So first of all, we should not desire for many things. See, if we deserve it, it will automatically come to us. Only when we desire, it becomes a passion. And the passion is in the form of karma. Karma, where it goes in a wrong, in a tangent or at a wrong direction, it leads to all sorts of calamities. So first get rid of karma and then krodha. So when we get rid of krodha, then, and the basic thing is desire. So if you are able to get rid of desire and just do our duty, and the duties we all well know what are the duties laid down to us, and if you do that, things will be all right. Now Krishna tells Arjuna, you are thinking that you are going to kill these people. No, it is wrong. I have already killed them. Whoever has to be killed have been already killed. So put the entire responsibility or the doership on me and get rid of the thought that you are doing something. And when that happens, you will be able to do your duty with a free mind. And that is the essence of, and Krishna also says, Atma cannot be killed. Now, just now Krishna ji explained very well. So it cannot be, see, no weapon can kill the Atma. It cannot be burnt. It cannot be blown away. It cannot be flown away. See, it is permanent and it has no end. So, and it is there. If Atma is there in you, Atma is there in me. Atma is Sarvavyapi. And it is no pranashyati. It doesn't decay at all. It doesn't die at all. And it is only the body that is having all the qualities that you are thinking. If you think that you are killing the body, it is the prana, you call it as a Brahman or you call it as the Atma or whatever it is, the word used is different in different contexts, but the Atma is something which cannot be killed by in any way. So Krishna tells Arjuna to fight, go ahead and fight. That is duty on the spot. So everyone, if we do our duty with a clear conscience, there will be happiness. And the question that was put I do not know the members' names, how to get happiness. So happiness is a state of the mind and it cannot be given by somebody, nor it can be got by any means. Happiness comes from our inner mind, and that happiness we will get if we do our duty on the spot. Now, I am an old woman and I don't have, there is no prescribed work for me at home. But whatever I think that on the spot I can do, if I can help my daughter-in-law, if I can help in her work, if I can help my children, grandchildren in studies, that is my duty. And if I do that, I will lead a peaceful and happy life. And with that, I would like to conclude. Thank you. Thank you so much. So now, Narayan Saab, how do we go ahead? We take up Umaji's question first. She was having. नहीं और लोग मतलब whatever you decide, whichever way, मतलब और लोग भी बोलने के लिए हैं. हाँ, और कोई बोलना है तो पहले. हाँ. यस यस ओजरकर जी. मेरा ये कहना है, जो अभी ललिता जी ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा से कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो उसकी इच्छा से. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो जैसा हमारा प्रारब्ध होगा, प्रारब्ध अच्छा होगा तो हम अच्छा काम ही करेंगे, वो भगवान की इच्छा से. अगर हमारा प्रारब्ध खराब होगा या जो कुछ भी है अच्छा नहीं होगा, बुरा कर्म करेंगे, वो भगवान की इच्छा से. क्या मैं सही हूँ? देखो, ये
जो दवे साहब ने हाँ, इसी जगह पे पहले बात की थी, मैंने प्रश्न किया था, उन्होंने बताया था कि हमारे कर्म करने में भगवान का कोई रोल नहीं है। आप जो कर्म करते हैं उसमें आप उसके भागी हैं, आप उसके जिम्मेवार हैं। क्यों दवे साहब, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसमें हमने प्रश्न किया था कि जैसे लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता है, जो हम कर्म करते हैं, चोर चोरी करता है कोई भगवान की इच्छा से करता है, और साधु संत जो पुण्य करते हैं भगवान की इच्छा से करते हैं। मेरा उसमें तर्क ये था कि जो कर्म के हिसाब से उनके पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से उनके कर्म निर्धारित होते हैं कि उसने ऐसा कर्म किया इसलिए उसको चोरी करने का कर्म मिला, इसने अच्छा कर्म किया उसको पुण्य करने का या पूजा पाठ करने का या धर्म कर्म करने का मिला। लेकिन आपने जो बताया था उससे मैं क्लियर हो गया कि हम जो भी करते हैं ये उसमें ना मान ले कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, इसमें भगवान की इच्छा है, वो हमारा है, भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है। और गीता के दूसरे अध्याय में जो मैंने थोड़ा सा समझा है उसमें उन्होंने कहा कि 1 से जो 10 का श्लोक है उसमें अर्जुन की अनिश्चितता के बारे में बताया गया है, और उन्होंने भगवान को अपना गुरु मान लिया कि भगवान गुरु हैं। 11 से 30 तक का दोहा है, उसमें आत्मा और शरीर के विषय में बताया गया, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा कैसे भिन्न है, शरीर कैसे अलग है। और उसमें बाद में जो गीता में दोहे में गीता में 3 चीजें हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो अध्याय 2 में कर्म योग और ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या की गई है पूरे दूसरे में, और भक्ति योग का थोड़ी सी झलक दी गई है। इसमें बताया गया भगवान कौन है, और कर्म पे हमारा अधिकार है, फल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, और जैसे पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, शरीर धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों कैसे अलग अलग हैं इसकी व्याख्या इसमें की गई है इसके अंदर में। और जब अर्जुन गुरु मान लेते हैं कृष्ण को, तो अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध करूं या युद्ध करूं और बहुत से लोगों का जो खून खराबा होता है उसका भागी बनूं, या युद्ध छोड़ के चला जाऊं। भगवान कृष्ण ने इसमें एक शब्द यूज किया है, नपुंसकता। वो क्यों इस्तेमाल किया है वो मुझे समझ में नहीं आया। नपुंसकता शब्द अर्जुन के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया है? कायर भी कह सकते थे कि तुम कायर हो, मगर नपुंसकता का अर्थ यह है कि उसके सामर्थ्य नहीं है। कायर मतलब क्या होगा कि वो बुद्धि नहीं चला रहा है और मूर्ख है, और नपुंसकता का मतलब ये है कि वो सामर्थ्य नहीं है, मगर इसको बलहीन भी कह सकते थे। ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है मुझे बहुत नहीं मालूम पड़ रहा। एक और चीज मैंने देखा है कि हम लोग बच्चों को बहुत प्रेम देते हैं, बहुत भाव देते हैं, मगर ये नहीं ध्यान रखते कि इसके जो काम कर रहा है तो इसका फल क्या मिलेगा, क्या होगा। जैसे कि गांधारी ने दुर्योधन को कई बार बताया तो जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, मगर दुर्योधन नहीं चाहता। परंतु उनके ही पिता धृतराष्ट्र ने एक बार भी नहीं कहा दुर्योधन को कि तुम गलत काम कर रहे हो, उन्होंने कहा कि तुम ठीक कर रहे हो, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तो इसमें ये भी हमको बताया गया है कि हम अपने बच्चों को ममता के साथ में, प्यार के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो जो कार्य कर रहा है उसका फल क्या मिलेगा, उसको सही दिशा देनी चाहिए प्यार और ममता के साथ साथ में। इसको भी इसमें बताया गया है कि इसको ध्यान रखिए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, है चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में, मगर अगर किसी को मालूम है कि इसमें शब्द नपुंसकता भगवान कृष्ण ने क्यों इस्तेमाल किया, बलहीन क्यों नहीं इस्तेमाल किया, तो हमें थोड़ा बताइएगा। ठीक है, और किसी को इसके बारे में? सर मेरा पॉइंट तो वो रह गया ना, मतलब नहीं, उस पॉइंट पे आ रहे हैं, उस पॉइंट पे आ रहे हैं। ओके ओके, एटलीस्ट आई विल टेक अप दैट पॉइंट। और किसी को मेरे ख्याल से वो पॉइंट से शुरू करें क्या? करिए, हैं फ्री में? जस्ट 1 मिनट। उमा का एक अच्छा, पॉइंट है। इसमें हाँ, मतलब अर्जुन कृष्ण से जब उपदेश लेना चाहता है, सो मतलब व्हाट इज दिस दैट यू शुड बी माय गुरु एंड आई शुड अटेन श्रेयस। श्रेयस, श्रेयस का मतलब है विमुक्त फ्रॉम दुख, है ना? और मतलब यू आर कंप्लीट। यस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम।
ये कहते हैं श्रेय का, मेरे ख्याल से एक बार हमने डिस्कस किया था. देयर आर टू थिंग्स, वन इज श्रेय, एक हमारे लिए श्रेय है और एक हमारे लिए प्रेय है. प्रेय मतलब विच इज प्रिय टू अस, जो हमको पसंद है, जो हम करना चाहते हैं, बट इट मे नॉट बी गुड फॉर अस, तो ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है. श्रेय का मतलब होता है जो हमारे लिए कल्याणकारी है. तो कई चीजें ऐसी होती है कि जो हमको अच्छी नहीं लगती है, जैसे जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ये करना, वो करना, दे आर गुड फॉर अस, अवर हेल्थ, वो कल्याणकारी है. बट इट मे नॉट बी प्रिय, हमको जल्दी उठना पसंद नहीं है, या एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, आराम करना पसंद है. तो जो अर्जुन पूछता है वो ये कहता है कि मुझे क्या प्रिय है, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, मुझे युद्ध लड़ाई करना प्रिय है इसलिए करूं, या युद्ध छोड़ना प्रिय है इसलिए करूं, दैट इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड. लेकिन मेरे लिए और समाज के लिए और सबके लिए कल्याणकारी क्या है वो आप मेरे को बताओ. तो दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग कि यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम शादिमाम ताम प्रपन्ना, मैं आपका प्रपन्न हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आपका शिष्य हूँ, वो मुझे बताओ. तो ये वो दयानंद सरस्वती के बुक में ना वैसा, हाँ, मतलब कुறையாத சுகம் எப்படி சொல்றது, happiness and purnatva and then completeness and then freedom and then that you are free from dukkha. ये सब इसको ये बोलते हैं पूर्णानंद. ये सब क्वालिटीज का पूर्णानंद, मतलब he is complete with all these qualities, only the person is complete. पूर्णानंद. तो ये श्रेयस मतलब ये मतलब ये श्रेयस जो है इसको कर्म से मतलब यू कैन नॉट अटेन, ऐसा इसमें लिखा है. ये श्रेयस जो है कर्म से यू कैन नॉट अटेन, ये ज्ञान से ही मिलेगा. नहीं, वो देखो उमा जी, उसके बारे में काफी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा हम है ना, आज का अपना जो फोकस और मे बी दिस थिंग कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम डे टू डे क्या कर सकते हैं. एक श्रेय और प्रेय का एग्जांपल अपनों ने पहले डिस्कस किया था कि जैसे किसी को स्वीट खाने का बहुत शौक है, आइसक्रीम खाने का, कुछ और स्वीट, गुलाब जामुन खाने का, बट ही इज डायबिटिक. ठीक है, तो उसके लिए प्रेय तो है स्वीट खाना, बट इट इज नॉट श्रेय फॉर हिम. सो टू मेक द थिंग सिंपल, आपने जो बताया पूर्णानंद करना, ये करना, कर्म से होना नहीं होना, बट बेसिक मीनिंग ऑफ श्रेय इज व्हाट इज गुड फॉर नंबर वन फॉर मी, नंबर टू इज फॉर ओवरऑल ग्लोबली. अगर अर्जुन के लिए भी कल्याणकारी, बट उसका वो ये कहता है कि मुझे ये बताओ, उसके आगे के जो आप शब्द देखो ना, वो भी बहुत अच्छे हैं. कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मेरे में कार्पण्य दोष आ गया है, लेकिन पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता. यू नो वो क्या एडजेक्टिव अपने लिए यूज करता है. वो कहता है मैं अर्जुन आपको पूछ रहा हूँ, लेकिन अर्जुन he is using this adjective for himself, धर्म सम्मूढ़ चेता. मेरा चित्त है वो धर्म सम्मूढ़ हो गया है, मतलब धर्म के बारे में मैं मूर्ख हो गया हूँ, अज्ञानी हो गया हूँ. I am unable to decide what is dharma for me, what is adharma for me. Sometimes he feels that to fight is dharma for me, sometimes he feels to run away from battle is my dharma. So he is unable to take decision. तो इसलिए वो कहता है कि अभी तो उसको प्रिय ये लग रहा है कि मैं युद्ध छोड़ के भाग जाऊं, मुझे इनकी हत्या नहीं करनी है. बट ही इज पर्टिकुलरली यूजिंग दिस वर्ड श्रेय. ही वांट्स टू टेल कि आप मेरे को बताओ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट आई लाइक, बट आई एम इंटरेस्टेड व्हाट इज गुड फॉर मी एंड ग्लोबली व्हाट इज गुड. दैट इज श्रेय. नहीं, कृष्णा ये बोलते हैं कि मतलब ठीक है, मतलब तुम्हें ये सब खराब लगता है, मैं समझता हूँ, लेकिन एक क्षत्रिय धर्म के हिसाब से तुम्हें ऐसा भागना भी अच्छा नहीं है. सब लोग यू आर राइट. इसीलिए वो बता रहे हैं कि तेरे को प्रिय नहीं है, दैट इज नॉट प्रिय फॉर, बट फॉर तेरा क्षत्रिय होने के कारण. सी क्षत्रिय इज हिज वर्ण एंड हिज आश्रम इज गृहस्थाश्रम, सो ही इज नॉट सन्यासी. तो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से भी टू फाइट इज योर धर्म, एंड दैट इज एंड दिस इज धर्म युद्ध. इट इज सी वो जो दुर्योधन इज आल्सो फाइटिंग, लेकिन वो दैट इज नॉट श्रेय फॉर हिम.
सो वाई अर्जुन के लिए वो पर्टिकुलरली क्यों कह रहे हैं कि दिस इज श्रेय फॉर यू, ये कल्याणकारी है, क्योंकि तेरा युद्ध करने से अधर्म के ऊपर विजय होगी, धर्म की संस्थापना होगी, and you will establish a good society with good law and order, and that is what you are meant for as a prince, as a king, royal family. So that is why it is shreya for you. ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी है कि तुम युद्ध करो and forget about the result. तुम मरोगे या जीतोगे या हारोगे या मरोगे या जिंदा रहोगे, that is not important. लेकिन युद्ध करना तुम्हारे लिए, particularly I think we were discussing about the word shreya. So Shreya and Preya, the difference is, Preya is what you like to do, and Shreya is what is good to do. That is the difference basically. ठीक है? Now coming to Ojarkarji's question, ये बहुत डिबेट हुआ है ये क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी डिबेटेबल. और इसका एक जो बेसिक वो है कि इंसान को फ्री विल है कि नहीं, या इट इज ऑल हार्डवायर्ड के एक कुछ भगवान ने करके दिया है एंड यू आर जस्ट एक्टिंग एज ए डॉल और एज ए पपेट ऑफ द गॉड, एंड ऊपर से स्ट्रिंग चलाई जा रही है एंड यू आर एक्टिंग लाइक दैट, या यू हैव ए फ्री विल, आपको कुछ खुद करने का आपको कुछ स्वतंत्रता है या नहीं. और ये क्वेश्चन बार बार, जैसे लाल साहब ने बताया, पहले भी एक बार डिस्कस हुआ था. और इसमें दो तीन चीजें समझने की हैं कि अगर फ्री विल नहीं है तो कोई कुछ गलत काम नहीं कर रहा है. दुर्योधन ने किया वो भी अच्छा किया क्योंकि वो भी भगवान ने कराया. अर्जुन कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है. कोई चोर चोरी कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है. कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो भी अच्छा कर रहा है. तो अगर सब भगवान कराते हैं, और अगर ये इफ इट इज एक्सेप्टेड फैक्ट हो जाता है, तो न तो कोई कोर्ट की जरूरत है, न कोई पुलिस की जरूरत है, न कोई न्याय तंत्र की जरूरत है, न कुछ नहीं. एंड देयर इज नथिंग लाइक पाप एंड पुण्य आल्सो. सी, पाप एंड पुण्य कब होता है? जब हम इंटेंशनली कुछ करते हैं. इसमें ये बताया है कि जब तुम निष्काम कर्म करते हो, बिना डिजायर के कर्म करते हो, तो तुमको न तो पाप लगता है न पुण्य लगता है. वो सेकंड चैप्टर में एक बहुत बढ़िया हुआ है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते. एक बार वत्स साहब के साथ डिस्कस हुआ था कि हम पाप पुण्य यही छोड़ के जाते हैं. तस्माद योगा युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम. अगर आप किसी इंटेंशन के बिना, किसी डिजायर के बिना, एक निष्काम भाव से सर्वभूत हिते रता, सब लोगों की सेवा करने के लिए, सबके कल्याण के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, तो न पुण्य लगता है न पाप लगता है. लेकिन तो इसमें ये फ्री विल है. फ्री विल में ये है कि आपको किसी का बुरा करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना और आप कर रहे हो, तो उसमें भगवान करा रहे हैं, भगवान दोषी नहीं है. और दूसरा, जैसे अभी गिरीश ने बताया कि आत्मा और परमात्मा, परमात्मा इज ए सुपर आत्मा. मतलब जैसे एक पावर है तो पावर हाउस इज ए परमात्मा, और वहां से हम जो छोटा पावर डिराइव करते हैं दैट इज आत्मा. अब आत्मा और परमात्मा के लिए और ब्रह्म के लिए ये कहा गया है कि वो अकर्ता है, नॉन डूअर एंड नॉन एंजॉयर. अकर्ता एंड अभोक्ता, वो न भोगता है न करता है. तो अगर वो करता नहीं है तो उसके मतलब जो हम करते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, अगर हम गलत करें. लेकिन ये जो बताया जा रहा है वो किस लेवल पे होता है कि जहां तुम इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो और जहां हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है, फिर भगवान की जिम्मेदारी होती है. इट्स ए डिफरेंट स्टेज. देयर आर थ्री डिफरेंट स्टेजेस वी आर वर्किंग. एक तो ये है कि हम हमारे मन के स्टेज पे वर्क करते हैं कि हमको ये करना है, मुझे खाना है नहीं खाना है, इट इज माय विल. मुझे अपनी हेल्थ, मतलब किसी को गंदी भाषा बोलनी है या किसी से अच्छी तरह से बात करना है, किसी से प्रेम करना है, किसी से हेट करना है, इट इज माय विल. इफ वी आर ऑपरेटिंग एट दैट माइंड लेवल देन इट इज दिस थिंग. बट उसके बाद एक इसमें जो है, हम कुछ श्लोक लेंगे. एक तो शरीर का है, एक जीवात्मा है और एक आत्मा है. व्हेन यू रीच टू दैट आत्मा लेवल, और आत्मा लेवल पे पहुंचने के बाद यू बिकम परमात्मा. ऑलमोस्ट तुम वो उस लेवल पे आ जाते हो. देन यू बिकम इंस्ट्रूमेंट. देन यू आर नो लॉन्गर ए डूअर. देन यू बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड. और उस समय हम जो करते हैं उस समय फिर परमात्मा की वजह से करते हैं. और बार बार अर्जुन को ये समझाया जाता है कि तू उस लेवल पर पहुंच. अर्जुन नहीं पहुंच पाता है
हम सब लोगों के लिए, बट दैट इज व्हाट गीता में तीन चार स्टेजेस हैं। एक तो ये है कि नॉर्मली एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग व्हाट वी आर नॉर्मली डूइंग, हम क्या करते हैं। नंबर 2, धीरे धीरे इंप्रूव कैसे करना चाहिए, व्हाट इज द सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। एंड हमको जो मोस्ट डिफिकल्ट लगता है कि नहीं ये तो बातें हैं करने की बट वी कैन नॉट डू, दैट इज ही टेलिंग द अल्टीमेट डेस्टिनेशन कि तुमको ब्रह्म बनना है, तुमको मनुष्य रहकर या भक्त रहकर नहीं, तुमको भगवान बनना है, तुमको परमात्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा को उस हद तक ऊंचा ले जाओ, और उसके लिए जिस तरह के हमको वो करने पड़ते हैं, सब निष्काम करना पड़ता है, राग द्वेष काम डिजायर ये सब छोड़ना पड़ता है। इट्स ए लॉन्ग दिस थिंग। कभी ऐसे हो जाता है, नाउ एंड हियर जैसा भी हो सकता है, भी तुम कर सकते हो, और कभी जन्मों जन्म के प्रयास के बाद वी कैन अटेन दैट लेवल, दैट इज वन थिंग। नाउ अब इसको सीरियस बनाने के बदले एक थोड़ा सा वो जो इनका एक क्वेश्चन था उसी का मैं इसमें एक श्लोक लेता हूँ, श्लोक नंबर 19 चैप्टर 2 का आप देख सकते हो। 19 आप अपना खोल दीजिए। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। ये कहता है कि ये जो हमारा मतलब शरीर है वो तो मतलब आत्मा है वो अविनाशी है, और शरीर है वो तो नाशवान है, शरीर नाश हो जाता है। लेकिन ये कहता है कि ये जो आत्मा है, या इसमें मैं अभी शब्द आत्मा यूज करूंगा, कि ये न तो मारता है न मरता है, ठीक है। ये हंतारम मतलब मारने वाला, वन हु किल्स, एंड हतम मतलब वन हु डाइज। तो ये कहता है कि ये न तो मारने वाला है न मरता है। और इस चीज को अगर जो समझ गया तो वो सब समझ जाता है, उस तरह का थोड़ा मीनिंग निकलता है। अब इसको, ये सांख्य योग का अगर इस श्लोक को रेफरेंस बना के हम सोचे तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। एक तरफ 18 अक्षौहिणी सेना थी, कई रोज के हजारों लोग मरते थे, लाखों लोग उस युद्ध में मर गए, और एक पक्ष जीता एक पक्ष हारा, और लाखों की गिनती में लोगों की मृत्यु हुई। और ये श्लोक अगर ये कहता है कि कोई मारने वाला भी नहीं था, इतने लोग मरे, इतना 18 दिन युद्ध चला, और कहता है कि किसी ने मारा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं, तो हाउ डू वी जस्टिफाई? कैसे हम कह सकते कि किसी ने मारा भी नहीं? और अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया बात है। 18 दिन तक युद्ध चलता है, इतने लोग मरते हैं, और यहाँ कहते हैं कि कोई मारने वाला भी नहीं है और कोई मरने वाला भी नहीं है। तो अगर ये है तो ये किस लेवल पे बात कर रहे हैं? आर दे टॉकिंग एट द लेवल ऑफ आत्मा? अगर आत्मा के लेवल पे बात कर रहे हैं तो भी ये सही नहीं उतरता है, क्योंकि आत्मा के लेवल पे आत्मा मारने वाला नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। नहीं, आत्मा हाँ, कोई मारने वाला भी नहीं है, कोई मरने वाला भी नहीं है, तो आत्मा के लेवल पे ये कह सकते हैं इफ यू रीच टू दैट लेवल। लेकिन जो जीवात्मा है जिसके बारे में वांसांसी जीर्णा ने वो किया है, तो मतलब इतने लोग मरे तो किसी ने किसी को मारा नहीं, ऐसा हम स्वीकार कर सकते हैं? यही जो फ्री विल का ऊपर जो आया था वही है। तो उमा जी का एक प्रश्न था, उमा बहन आप उसको रिपीट कर सकते हैं वो प्रश्न को, लास्ट टाइम जो आपने बोला था? आपने कहा था मन है, इंद्रियां हैं, वो सब काम करते। हाँ, मतलब ये मतलब ऐसा मैंने सोचा, हाँ, ऐसा मुझे लगा कि we have so many organs, there must be something, some power in our body which makes this organ functioning. हाँ. So is that Atma I was asking? Is that is the thing I was asking you? और organs are not Atma. Organs are not Atma. लेकिन आपने ये कहा था कि इतना काम होता है, लेकिन फिर भी आत्मा वो काम नहीं करती है. Is that true? That's what I read. So what does it mean? समझ में नहीं आया. तो उसका मैं एक सिंपल, देखो अभी जो हम एग्जांपल दे रहे हैं ना, we will slowly, मतलब उसको अगर कैसे, लेकिन इन वेरी लेमन लैंग्वेज और अपने लेवल पे धीरे, मतलब एक छोटी सी उसमें कर रहे हैं. दैट इज, एंड वॉट एवर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, दैट इज नॉट ए परफेक्ट एग्जाम्पल,
बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए देन वी विल फर्दर डेवलप इट। तो आप ऐसा सोचिए कि बेंगलोर है या चेन्नई है, अहमदाबाद है, वहां पे एक बहुत बड़ा 1000 मेगावाट का और उससे भी बड़ा देयर इज ए पावर हाउस। ओके, इट इज जनरेटिंग पावर। वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर एक के घर में, डोमेस्टिक सप्लाई आ रहा है, कहीं फैक्ट्री चल रही है, कहीं कारखाने चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, ट्रेन चल रही है, बसेस चल रही है, एवरीथिंग वट एवर इज हैपनिंग। तो वहां से जो आपके डोमेस्टिक प्लग में जो पावर आता है उसको आप समझो वो आत्मा है, जो पावर हाउस है वो परमात्मा है। अब उस आत्मा को, आत्मा इज डूइंग नथिंग। वो जो प्लग है, अगर उसमें आपने मिक्सी डाल दिया तो मिक्सी चलने लगेगी, टीवी डाल दिया तो टीवी चलने लगेगा, एसी डाल दिया तो ठंडक देगा, हीटर डाल दिया तो गर्मी देगा। ठीक है, नाउ इन द प्रोसेस अगर आपने हीटर डाल दिया है एंड इफ यू बर्न योर फिंगर, तो इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नाइदर द फॉल्ट ऑफ, अगर हो सकता है थोड़ा फॉल्ट अगर कहना है तो इट इज योर फॉल्ट और द हीटर्स फॉल्ट। बट अगर कुछ भी नुकसान होता है आपको या किसी को भी, या इफ यू आर मिसयूजिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी, या कहीं कोई शॉर्ट सर्किट होकर घर में आग लग जाती है, तो यू कैन नॉट ब्लेम इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो दैट इज व्हाट आत्मा एंड परमात्मा वी कैन कॉल, कि उनको तुम, दे आर अकर्ता है, बट उसके सामने जो इंस्ट्रूमेंट आप लगाते हो, तो वी आर इंस्ट्रूमेंट एंड वी आर पावर्ड बाय दैट आत्मा। ठीक है, लेकिन जो काम करते हैं वो मेरा डिजाइन जो है, मेरा जो नेचर है उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। इफ आई एम एसी देन आई विल गिव कोल्ड एयर, इफ आई एम हीटर आई विल गिव हॉट एयर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी हैज नो पावर, नो रोल टू प्ले। हाँ वत्सा। नहीं, जैसा आपने बोला कि ये पावर हाउस परमात्मा और जो अपने घर में सप्लाई आई वो आत्मा, यदि हम इसको अपने जीवन पे माने तो बिहारी आत्मा है और हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, तो फिर जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने में जब ये आत्मा ने कुछ करा भी नहीं, कराया भी नहीं, तो फिर इसके साथ और फिर दूसरा जन्म लेकर के जब हम किसी दूसरी बॉडी में जाते हैं, वहां फिर यहाँ के जो पाप पुण्य है उनको ये आत्मा लेके जाती है। तो फिर जब आत्मा करती नहीं, कराती नहीं, उसका कोई दायित्व नहीं है, दायित्व हमारा है, तो फिर ये बॉडी के साथ ये पाप और पुण्य कर्म जो है यहीं जल जाने चाहिए, फिर दूसरे जन्म में क्यों साथ लग के आ जाते हैं? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वत्सल। और ये भगवत गीता में ये जो श्लोक है ना 11 से लेके 30 तक, वो आत्मज्ञान के श्लोक हैं। और उसमें हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन, मतलब क्योंकि कई किताबों में भी एक देयर आर टू थिंग्स, एक आत्मा है, एक जीवात्मा है और एक शरीर है। लेकिन आत्मा और जीवात्मा जो है वो बड़े इंटरचेंजेबली यूज होते हैं एंड बड़े कंफ्यूज, मतलब इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो जैसे अभी मैंने इसको कुछ मार्क करके रखा है कि श्लोक नंबर 12 चैप्टर 12 का, अरे चैप्टर 2 का 12, तो उसमें ये बताते हैं न त्वेवा हम जातु नासम न तम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे, मतलब वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि न तू पहले था और न बाद में रहेगा, ऐसे मैं भी और ये जितने राजा लोग ये युद्ध में जितने खड़े हैं वो पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। ठीक है, इसलिए तू ये जीने मरने की चिंता मत कर, कोई मरता नहीं है। मतलब तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, और जब पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट होता है तो वहां पुनर्जन्म आत्मा नहीं लेती है। अगेन यू कम टू द ट्रेड्स गिवन बाय गिरीश। गिरीश ने बताया कि आत्मा की क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो वो अजन्मा है। आत्मा जन्म नहीं लेती है, मृत्यु भी नहीं होती। आत्मा की क्वालिटी इट इज अजन्मा। आत्मा जन्म नहीं लेती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। लेकिन जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है, जीवात्मा का बार बार शरीर बदलती है। तो वी हैव टू कम टू दैट। उसको ये तीनों लेवल पे मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो श्लोक, एक जो इसमें ज्यादा क्लियर करेगा, वो है श्लोक नंबर 22। वो है वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वो ये बताते हैं
कि जैसे हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, ये शरीर है और हम वस्त्र पुराने हो जाते हैं, तो हम वो वस्त्र को फेंक देते हैं, त्याग देते हैं और दूसरे वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी तरह से ये शरीर है, वो जीवात्मा, आत्मा का नहीं। अब आत्मा क्या है, उसके कुछ लोग अलग हैं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ सब मिक्सअप हो जाता है। तो यहाँ जो कहते हैं कि जो जीवात्मा है, वो, उसके लिए ये शरीर है, वो वस्त्र है। इट इज लाइक योर गारमेंट्स, ठीक है। तो वो जैसे पुराना हो जाता है तो उसको बदलना पड़ता है और वो नया वस्त्र धारण कर लेता है और उसका पुनर्जन्म होता है। तो दिस इज ट्रू फॉर जीवात्मा एंड नॉट फॉर आत्मा। अब आत्मा का लिए जो श्लोक है यहाँ पे, वो 24th का जो श्लोक है, वो करीब करीब जो प्रॉपर्टीज जो ग्रीश ने बताई थी, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेश्यो शोष्य एवच, वो तो ठीक है, मेरे को कोई काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, वगैरह वगैरह। बट नित्य, आई एम एवर प्रेजेंट, नित्य, सर्वगतः, ऑल परवेडेड, मतलब मैं व्यापक हूँ। आई एम द वर्ल्ड इज परवेडेड बाय मी, मेरे, ये संसार पूरा मेरे से व्याप्त है, आत्मा से व्याप्त है। स्थाणुर अचलम, मैं अचल हूँ, मैं यहाँ एक मिलीमीटर भी हिलता नहीं हूँ, अचल हूँ, मैं स्थिर हूँ। एंड सनातन हूँ, मैं अनादि हूँ, अनंत। सनातन मतलब मैं हमेशा एवर एवर प्रेजेंट एंड एवर देयर, सनातन हूँ। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा। ये आत्मा कैसे जन्म लेगा? आत्मा कभी जन्म लेता नहीं है। तो व्हाट इज आत्मा, जैसे मैंने आपको बताया कि जीवात्मा इज ए सेकंड लेवल। तो यहाँ जो भगवान अर्जुन को समझाने की जो ट्राई करते हैं, वो पहले तो उसको ये पहले वो शरीर के, देखो ये जो आगे जो बताते हैं कि ये मोह छोड़ देना चाहिए, आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, ये छोड़नी चाहिए। आसक्ति इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। मुझे मतलब किसी से प्रेम है तो वो उसके आत्मा से मैं प्रेम नहीं कर सकता हूँ, बॉडी से प्रेम कर सकता हूँ। एंड आई रिकॉग्नाइज ए पर्सन बिकॉज ऑफ हिज बॉडी एंड बिकॉज ऑफ हिज नेम। उसका नाम और रूप देख के कि ये वत्साब है या ये एक्स है या ये वाई है या जेड है या ये मैं हूँ। तो मेरी किसी से अगर प्रेम होता है या द्वेष होता है या शत्रुता होती है तो बॉडी से होती है, ठीक है। तो बॉडी से थोड़ा ऊपर के लेवल पे जाओ तो जैसे मैंने बताया था, एक सूक्ष्म शरीर है। एंड बॉडी, एज आई टोल्ड यू, जैसे आत्मा कुछ नहीं करती है, ऐसे बॉडी भी कुछ नहीं करती है। बॉडी जो है, इट इज जस्ट ए मैकेनिज्म। एक जैसे गाड़ी का मतलब स्टीयर वो है, बट जब तक कोई चलाने वाला नहीं है, इफ देयर इज नो ड्राइवर देयर, देन गाड़ी ऑन इज ओन, उसको ऑन करके भी रख दो, पेट्रोल भी भर दो, चालू भी कर दो, बट ऑन इट्स कैन नॉट डू एनीथिंग। So all the organs of the body, हमारे आँख, कान, हाथ, they are driven by somebody who is sitting inside, ठीक है। और उसको लोग आत्मा कहते हैं, but it is not आत्मा, it is जीवात्मा। जीवात्मा is soul and आत्मा is consciousness। और जो जीवात्मा है, it is a mix of your desire powered by आत्मा। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके डिजायर्स हैं के, और उसी से वो सूक्ष्म शरीर, उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो कहते हैं, उसका अंतःकरण कहते हैं। और एकदम शॉर्ट में कहना है तो आपके जो डिजायर्स हैं और आत्मा, वो दोनों मिलके जीवात्मा बनती है। और इसीलिए जब तक आपके डिजायर नष्ट नहीं हो जाते हैं, डिजायर जीरो नहीं हो जाते हैं, तब तक जब तक जीवात्मा, जब तक डिजायर्स नष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक डिजायर और आत्मा अलग नहीं होंगे। एंड वो अलग नहीं होंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं होगी। तो ये जो बार बार जो जन्म लेता है आत्मा का, तो न आत्मा एक चीज मैं बताता हूँ कि वी आर इन द ओशन ऑफ आत्मा। यो समझो, एक जैसे मछली है, वो समुद्र में है, तो अगर उसके पानी को अगर आत्मा कहो तो पानी इज ऑल अराउंड मछली एंड इनसाइड मछली, ठीक है। और भगवान का और आत्मा का और परमात्मा का जो नियरेस्ट अगर एग्जाम्पल देना हो, एक एनालॉजी देनी हो, तो वो जो शांताकारम श्लोक है ना, उसमें गगन सदृशम, भगवान कैसा है तो गगन जैसा। और उसका तुम देखो ऑल द प्रॉपर्टीज, इसने जो गिरीश ने गिनाया था, ऑल परवेडेड, ठीक है, नो प्रॉपर्टीज, नो मेजरमेंट्स, अनलिमिटेड। And we are in space, we are in Akash and Akash is in us.
स्पेस हमारे अंदर भी भगवान है और हम भगवान के अंदर हैं. एवरीथिंग इज इन गॉड. तो एंड प्रॉपर्टी लेस, you anadi, anant, you ajanma, you cannot kill it, you cannot do it. All the properties described by Girish is there in Akash, गगन सदृशम. तो अगर आपको कोई उदाहरण लेना है कि भगवान कैसा हो सकता है, तो द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल इज कि वो आकाश जैसा है, इतना विशाल है और वो सबको समान करता है. बट वो आपको, ही इज नॉट एट ऑल इंटरफियरिंग इन योर एक्टिविटीज. वो एक्टिविटीज तुम्हारी है एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आकाश एंड गॉड? आकाश इज लाइफलेस. दवे साहब, हाँ जी. आकाश तो इंटरफियर तो करता है. कैसे? आकाश में जो हवा चलती है, हाँ, तो वो हवा से तूफान आते हैं, बरसात होती है और बहुत सारी क्रियाएं, धूल उड़ेगी, आंखों में जाएगी, ये सब तो क्रियाएं, वो क्रियाएं आकाश में होती हैं. हाँ, बट आकाश उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. आकाश इज ए स्पेस. लेट अस से, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये रूम के अंदर हम बैठे हैं ना, तो वो रूम के अंदर भी आकाश है. वो रूम के अंदर का आकाश है. दीवार तोड़ दो तो आकाश बड़ा हो जाएगा, दीवारें बना दी तो छोटा हो जाएगा. अब रूम में बैठकर हम क्या करते हैं? आकाश में अगर तूफान आता है तो इट्स ए डिफरेंट मीटरोलॉजिकल फिनोमिना. टॉर्नेडो आता है तो इट्स ए डिफरेंट फिनोमिना. बरसात आती है, लेकिन बरसात आके चली जाएगी, आकाश भीगेगा नहीं. आकाश के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा. तूफान आके चला जाएगा, कहीं आग लग जाएगी, आकाश नहीं जलेगा. सो जो आकाश जो है वो इट इज नॉट मतलब इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी. आकाश ये तो जो तूफान और हवा चलती है वो कितने किलोमीटर, 10. आकाश तो अनंत है, स्पेस जहां वैक्यूम भी है. तो आकाश का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं. दीज आर ऑल डिफरेंट फिजिकल फिनोमिना, मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना हो रहे हैं. बरसात हो रही है तो हो रही है, बादल है, बादल आए चले गए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है. लाइक एक स्क्रीन पे अगर मूवी चल रहा है तो स्क्रीन है, आज कोई मर्डर मूवी बता दिया, कहीं कोई मिस्टीरियस मूवी बता दिया, कोई लव सीन बता दिया. मूवी होने के बाद वो स्क्रीन तो स्क्रीन जैसा ही रहेगा. स्क्रीन के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. वहां अगर वर्ल्ड वार भी हो गया तो एक खून का धब्बा उस स्क्रीन पे नहीं मिलेगा. लाइक दैट इज व्हाट. एंड स्टिल आई एम टेलिंग कि आकाश इज जस्ट ए स्मॉल, इट इज नॉट ब्रह्म. आकाश इज नॉट गॉड. आकाश जैसा अगर कोई पूछे कि ये कैसा होगा, कोई कहता है कि ये तरबूज का फल कैसा होगा, तो कह सकते हैं कि भी वो जैसा पंपकिन, अगर किसी ने पंपकिन देखा है तो उसके वो ऐसा बड़ा होता है, ऐसा होता है बड़ा, लेकिन उसका कलर थोड़ा अलग होता है. लाइक दैट वी ट्राई टू एक्सप्लेन. तो अगर हम किसी को ये बताना चाहें कि ऐसा भगवान होता है कि जो हर जगह है, मतलब कहीं भी एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जो खाली नहीं है. एंड द थिंग इज कि आकाश अचल, आकाश हिल नहीं सकता है. आकाश में तूफान आ सकते हैं, लेकिन आकाश खुद नहीं हिल सकता है. आकाश इटसेल्फ, एक आप पानी की बोतल अगर आधी भरी हुई है और उसको बंद करके आप हिलाओ तो पानी हिलेगा, लेकिन अगर पूरी भरी हुई है और उस पर ढक्कन लगा दिया, देन इट बिकम्स अचल. तो व्हेन द एंटायर, पूरा संसार अगर इससे व्याप्त है, एक कोना भी, एक मतलब जिसे हम कहते हैं कि 10 मीटर की स्टील की दीवार है, तो उस दीवार के अंदर भी आकाश तो है ही. आकाश वो हमको दिखने में वो उस आयरन की वॉल लग रही है, बट इट इज वेरी हॉलो. क्योंकि इफ यू सी द स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम के अंदर न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन्स है, और उनके बीच का जो गैप है, इफ यू कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज ए फुटबॉल, उसका साइज देखो तो वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फुटबॉल का मैदान जितना बड़ा गैप है. So everywhere it is hollow, everywhere it is space. So space is everywhere and we are in space and space in is us. अगर हमारे अंदर स्पेस नहीं होगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, रुधिर भ्रमण नहीं होगा, हार्ट बीटिंग नहीं होगा. So space is inside us. तो भगवान के लिए भी कहते हैं भगवान हमारे अंदर भी है, और हम पूरा संसार विश्व रूप दर्शन में पूरा ब्रह्मांड, एंटायर यूनिवर्स इज इन गॉड. तो पूरा यूनिवर्स भगवान के अंदर है और भगवान हमारे अंदर भी है. तो ऐसा अगर कोई पूछे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसका एक एग्जांपल देना है, एक एनालॉजी देनी है. तो दैट एनालॉजी इज कि भाई आकाश देख लो, तुम आकाश के अंदर भी हो और आकाश तुम्हारे अंदर भी है.
तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? आकाश प्रॉपर्टी लेस भी है, आकाश ऑल परवेडेड है, हर जगह व्याप्त है। आकाश को तुम काट नहीं सकते हो, जला नहीं सकते हो, उसका कब जन्म हुआ यू डोंट नो, कब मरण होगा यू डोंट नो, वो निर्विकार है। एवरीथिंग, जितने जितने प्रॉपर्टीज यहाँ बताए, एक्सेप्ट दैट आकाश और ब्रह्म में ये फर्क है कि अगर आकाश में सत चित आनंद आ जाए तो वो ब्रह्म हो जाता है। इफ इट बिकम्स लाइवली, अगर उसमें लाइफ आ जाती है, उसमें वो सत तो है, इट इज आकाश इज सत, एवर एग्जिस्टेंस तो है, बट इट इज लाइफलेस। दैट इज द डिफरेंस। एंड आनंद जिसे कहते हैं तो परमानंद, फिर ब्रह्म ब्रह्म कहाँ है? दैट इज एग्जैक्टली। अब जो ये बात है, आकाश भी ब्रह्म के अंदर, तो ब्रह्म जो है, अब इनफैक्ट वो चैप्टर 7 का उसमें ज्यादा आएंगे, बट अगर अभी ये चला ही है तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म की दो शक्तियां हैं, वो 7 चैप्टर में हम आएंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर में ही है। उसकी दो शक्तियां हैं, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। तो ब्रह्म एज इट इज वो एक एंटिटी है विच इज लिमिटलेस, विच इज व्याप्त एवरीवेयर, ब्रह्म जिसे परमात्मा कह दो। और उसमें दोनों है, पुरुष और प्रकृति दोनों है। तो प्रकृति है वो ऑल मटेरियल वर्ल्ड, एंड पुरुष है वो दैट इज द लाइफ पार्ट ऑफ इट। तो अभी जैसे हमारा बॉडी है, अब बॉडी का एग्जांपल लें, तो बॉडी एज वी अंडरस्टैंड द बॉडी, तो बॉडी को अगर जानना है तो हम इसका एनाटॉमी देख लो कि कितने ऑर्गन्स हैं, क्या अंग है, किस तरह, हार्ट क्या है, ये क्या है, कैसे बना है, क्या बना है, इसका एनाटॉमी। फिजियोलॉजी में ये है कि हर तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, ये काम करता है, कैसे करता है। और उसका बायोकेमिस्ट्री देख लो, उसकी पैथोलॉजी देख लो, तो ये सेल है, ये है, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज देयर। बट ये सब को अगर आप एनालाइज करेंगे तो दे आर मेड अप ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो भी 108 या 180 जितने भी हैं एलिमेंट्स, उसके बाहर का कोई एलिमेंट हमारी बॉडी में नहीं मिलेगा। आपको जिंक मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, सल्फर मिलेगा, आयरन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बट जो लाइफ है उसको हम आत्मा जो कहते हैं, जो इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ परमात्मा, जो पावर हाउस से जो पावर यहाँ पे पावर आया है, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, वो जो आत्मा है, वो उसमें से वो किसी भी, न तो आपका पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट है, न कुछ एलिमेंट है। अच्छा, अभी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में भी अगर हम जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली कोई वैज्ञानिक ये कहेगा कि नथिंग डूइंग, ये पूरी दुनिया जो है वो कोई एलिमेंट भी कोई नहीं। आई कैन कम डाउन टू ओनली 3 थिंग्स, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये 3 से पूरी दुनिया बनी है, ऐसा मान सकते हैं वत्सा? पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं है, कोई ना हीरा है, ना चांदी है, ना सोना है, ना पत्थर है। जो कुछ है वो पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब जो गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं वो ये कह के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किससे बने हुए हैं। तो द कॉन्सेप्ट इज कि देयर इज ओनली थिंग्स जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है, वो ब्रह्म है क्या। तो और वो जो उस लेवल पे जब पहुंचते हैं तो वी और इसीलिए अभी हमारी जो जागृत अवस्था में हम जो दुनिया देखते हैं उसको भी स्वप्नावस्था जैसा ही है कि हमको ये अलग अलग रूप दिखते हैं कि अरे ये सोना है, ये हीरा है। अरे हीरा है कि कार्बन, कार्बन तो वो तो कोयला भी हो सकता है, जिसे हम हीरा कहते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन इज कार्बन। इट कैन बी ग्रेफाइट, इट कैन बी कोल, इट कैन बी दिस थिंग, एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग व्हाट इज गोल्ड, वो भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह की जब दृष्टि हो जाती है तब आपको सोना, चांदी या वो एक वो आया था ना कि धूल, पत्थर और सोना सब एक जैसा दिखता है। तो ऐसा कब दिखेगा? जब तुमको मालूम होगा कि ये सोना भी कुछ नहीं है, चांदी भी कुछ नहीं है और पत्थर भी कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नथिंग मोर देन दैट। देन यू विल हैव नो अटैचमेंट फॉर गोल्ड एंड एवरीथिंग। तो ये जो है, आपने जो कहा कि ब्रह्म क्या है, तो ये जो कुछ भी है इंक्लूडिंग अवर सेल्फ एंड अराउंड अस, जो कुछ भी दृश्य है, अदृश्य है, जो कुछ भी है, जैसे आकाश सर्वव्याप्त है ऐसे ब्रह्म सर्वव्याप्त है।
और हम ब्रह्म के अंदर, परमात्मा के अंदर ही मछली की तरह रह रहे हैं। और मछली भी नहीं, अल्टीमेटली तो ये है कि अगर हम कहें कि ये सोना ब्रह्म, सोना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो मैं भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही हूँ। तो अगर ये पूरी दुनिया ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूँ। एंड दैट इज द फाइनल दिस थिंग कि अहम ब्रह्मास्मि का जो हमारा हम जब कहते हैं, तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब ये नरसिंह मेहता इतने बड़े कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने काफी कृष्ण भगवान के ऊपर भजन लिखे हैं जो लोग अच्छी तरह से मतलब, लेकिन उनका भी जब भक्ति की पराकाष्ठा हो गई, व्हेन ही रेड टू द क्लाइमैक्स ऑफ द भक्ति, तो उन्होंने भी कहा कि जागी ने जो हूं तो जगत दिसे नहीं। वो कहता है जब अब मैं अवेकंड हो गया हूँ, जग के देखता हूँ तो मुझे संसार दिख नहीं रहा है, तो दिख क्या रहा है? तो ब्रह्म लटका करे ब्रह्म सामने, मैं भी ब्रह्म हूँ और ये जो संसार की जो ब्रह्म इज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ ब्रह्म, द एंटायर वर्ल्ड इज नथिंग बट डांस ऑफ ब्रह्म एंड आई एम ऑब्जर्विंग दैट डांस ऑफ द ब्रह्म। और ये जो है वो हमको भगवान क्या है उसका 7 से लेकर 12 चैप्टर तक भगवान क्या है उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे, ब्रह्म क्या है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। एंड देयर आर वेरियस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन, वो विश्व रूप दर्शन इज नथिंग बट द एंटायर विश्व इज गॉड, एंटायर, जैसे सीए राम में सब जग जानी, रामायण में भी जिस तरह से आता है। एंड अगर एंटायर वर्ल्ड, अगर हम ये कह दें कि एंटायर वर्ल्ड इज गॉड, तो वेयर एम आई? मैं भी तो वर्ल्ड में हूँ, कोई मैं अलग वर्ल्ड दुनिया से अलग तो नहीं हूँ। तो अगर पूरा वर्ल्ड भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ, मैं भी सीए राम हूँ और आप भी सीए राम हूँ। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस लेवल पे आएंगे। यस सर। तो पर ये जीवात्मा, जब मैंने शुरू में बोला था जीवात्मा या पाप पुण्य को संचय करके अगले जीव शरीर में चली जाती है, वो क्यों करती है? वो क्यों करती है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये ओजरकर जी का सवाल जो आया था उसका भी जवाब होगा। और मैंने वो जो बताया था कि इतना इतना युद्ध हुआ और हम कहते हैं कि किसी ने मारा नहीं, वो मारा नहीं, दैट आई डोंट एग्री। आत्मा नहीं मारती है, लेकिन किसी ने तो किसी ने किसी को मारा है। अब ये बॉडी भी नहीं मारती है, तो अर्जुन ने अगर मारा या दुर्योधन ने अगर मारा या भीष्म ने मारा, किसी ने भी मारा, तो वो जैसे मैंने बताया कि बॉडी ऑन इट्स ओन कैन नॉट डू एनीथिंग। बॉडी अपने आप, अगर आप सोए हैं तो आपके पाँव ये डिसीजन नहीं लेते हैं कि मेरे को उठ के बाजार जाना है। वो कोई आपका डिसीजन अंदर बैठने वाला वो कहता है कि चलो उठो, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, शर्ट पैंट पहन लो, आपको शॉपिंग करने जाना है। सो इट इज नॉट द डिसीजन ऑफ योर फीट, और इट इज नॉट द आपको क्या खाना है वो डिसीजन आपका। हाँ जी, उसमें तो मतलब मुझे कुछ करना है तो सुशीला बोलती है कि भाई चलो उठो, वहां जाना है। तो शी इज ड्राइविंग। तो कंट्रोलर और तो ये अगर आपने इनकार कर दिया तो somebody inside you is driving you। आप हर बात मान लो ये तो बाहर है उस हिसाब से तो ऐसा है अपनी बॉडी को when there is, वो सही बात है कि उन्होंने कह दिया है, लेकिन हमारा मन जब कहता है कि हमारे पाँव को कोई ऑर्डर कहता है, अगर हमने कोई अच्छी चीज देखी और उसको लेना है तो वहां से ऑर्डर आंख को जाती है कि ये देखा तुमने, फिर चल के जाओ, उससे बात करो, ये खरीदो, लेके घर पे आओ। तो ये बॉडी जो है, बॉडी तो इट इज लाइक ए सिंपल मैकेनिज्म विदाउट एनी सेंस। उसको कुछ नहीं है, मतलब जब तक उसको कोई ड्राइव नहीं करता है तो कोई उसको उससे अच्छे काम करवाता है। ये हाथ पैर आँख ये तो सबको भगवान ने एक जैसे दिए हैं, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है वो किसी से अच्छा काम करवाता है, किसी से बुरा काम करवाता है, किसी से स्मगलिंग करवाता है, कोई गैम्बलिंग करता है, कोई सत्संग करता है, कोई कुछ करता है। तो वो जो है, और वो जो जीवात्मा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यू डू। आप जो भी करते हो उसके लिए वो जीवात्मा जिम्मेदार है। पाप पुण्य उसको लगता है और उसके हिसाब से उसको पुनर्जन्म मिलता है, उसके हिसाब से उसको शरीर मिलता है, और उसको वो जीवात्मा। एंड द थिंग इज, वो जैसे वो होता है ना एक अंधा और बहरा, कि अंधा देख नहीं सकता है और लंगड़ा चल नहीं सकता है, तो लंगड़े के ऊपर, अरे अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ गया तो वो उसको बताता है और वो चलता है। ऐसा है, जीवात्मा अपने हिसाब से कुछ काम नहीं कर सकता है, जीवात्मा के कोई ऑर्गन्स नहीं है। इसलिए जीवात्मा तो अगर वो उसको बॉडी नहीं मिली
तो जीवात्मा इज यूजलेस, और बॉडी विदाउट जीवात्मा इज यूजलेस। तो जीवात्मा बॉडी को यूज करके बॉडी से काम करवाता है। लगता ऐसा है कि ये किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बॉडी ने थप्पड़ मारा, लेकिन बॉडी ने तो जीवात्मा का काम करके थप्पड़ मारा है। बट यू कैन नॉट पनिश जीवात्मा, तो यू हैव टू पनिश द बॉडी। ठीक है, तो अभी जैसे दुर्योधन गलत काम कर रहा था, तो दुर्योधन ये तो जानते हैं कि दुर्योधन की बॉडी तो कुछ मतलब गलत, लेकिन दुर्योधन का जीवात्मा उससे काम करवा रहा था और वो बहुत दुष्ट कर्म कर रहा था। तो दुर्योधन को मारने का मतलब ये है कि उसके इंस्ट्रूमेंट को तुम जब तक खत्म नहीं करोगे, तब तक अंदर जो बैठा हुआ उसका जो जीवात्मा है वो ऐसे गलत काम करवाता रहेगा। सो यू डिस्ट्रॉय द इंस्ट्रूमेंट, and destroying the instrument of the jivatma is killing a person. That is what is I am trying to explain. अब किस to what extent मैं समझा पाया या नहीं। और वो भगवान कृष्ण मतलब अर्जुन से ऐसे कैसे बोलते हैं कि ऑलरेडी दोस पीपल हैव पीपल आर नो मोर, ऐसा भीष्म को तुम मार रहे हो करके बोलते हो, तो मर चुके हैं, ऐसा 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 कैसा बोलते हैं बस? आप देखो, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अर्जुन को ये हो गया था भ्रम कि ये युद्ध में अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कोई नहीं मरेगा, और ये मैं युद्ध करूंगा तो जो मर रहे हैं उसका पाप पुण्य मुझको लगेगा, मेरे भाइयों पे लगेगा। तो उस समय उसने ये कहा कि देख, ये इनको मरना है वो निश्चित है, कब मरना है, दैट डेस्टिनी। देखो, ये चीज है कि हमारा एक डेस्टिनी तो निश्चित है कि हम कैसे मरेंगे, कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे वगैरह। तो दैट कृष्णा इज वाज ट्राइंग टू टेल कि तू इनको तो मरना तो है ही, तेरे हाथ से नहीं मरेंगे तो किसी से हाथ से नहीं, किसी के हाथ से मरेंगे। तो यू डोंट थिंक कि ये तू मार रहा है, मतलब यहाँ पे उसको वही समझाने की ट्राई करते हैं कि नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि एक्चुअली हमारा आज का चर्चा का विषय का जो मेन पॉइंट था वो ये था। एक मिनट सर। हाँ, एक मिनट। हाँ। भागवत में ये लिखा है कि कृष्ण द्वापर युग में थे और जो लोग वहां पर थे आज वो मनुष्य योनि में है, और वहां पे जो जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जिसने बुरे कर्म किए, वो सभी इस मनुष्य योनि में है और वो उनका प्रारब्ध है। तो उसके मुताबिक ही वो यहाँ पर अभी वर्तन कर रहे हैं। मतलब अच्छे कर्म वाले अच्छे कर्म करते हैं, सन्यासी होके, और बुरे कर्म वाले हैं वो बुरे कर्म करते हैं। वरना वो जो वो करता है, हाउ ही डज इट, मतलब बुरा कर्म करना उसको कैसे प्रेरित होता है? देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको, एक चीज बताता हूँ कि एंटायर वर्ल्ड को आप, मतलब एंटायर यूनिवर्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, राइट फ्रॉम बॉटनिकल वर्ल्ड, मतलब पेड़ पौधों से लेके पशु पक्षी से लेके जानवर से लेके जितनी भी योनियां हैं उनको आप ऑब्जर्व करो, तो हर एक व्यक्ति, हर एक जो है ना पेड़ है, तो उसका काम है कि बस ये ग्रो करना, ऐसा करना, फल फूल आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसका फल आप ले लो, ये ले लो वो लो, उसके अपनी मर्जी के मुताबिक। आम का फल, अगर आम को ये हो कि मेरे को आम नहीं जामुन उगाने हैं, या मेरे उस पे केला उग जाए तो आम के पेड़ पे आम ही उगेंगे, एप्पल के पेड़ पे एप्पल ही उगेंगे, लाइक दैट। तो जैसे कुत्ता है, ये देखो, हमारी इतनी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, हमारे रिलीजन अलग अलग हैं, हमारी बातें अलग अलग हैं, हमारी थिंकिंग अलग अलग है। व्हाई? आप देखो, एक यू टेक ए कैट, आप यहाँ की बिल्ली ले लो और अमेरिका की बिल्ली ले लो, तो उनकी लैंग्वेज अलग है क्या? उनकी सेम लैंग्वेज है, उनको साथ में मिला दो तो वो एक ही तरह से बोलेंगे। आप यहाँ का कौवा ले लो, वहां का कौवा ले लो, तो उनके लिए वो फ्रीडम नहीं है, या फ्रीडम है तो बहुत कम फ्रीडम है। लेकिन ये मनुष्य योनि जो है, वो जो इस जमीन पे, उसके अलावा काफी योनि है, देव योनि, गंधर्व योनि, किन्नर योनि वगैरह वगैरह, वो अलग है। लेकिन मनुष्य योनि में आते आते ये कर दिया है कि नाउ लॉट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिए प्रारब्ध के अनुसार कि तुम यू कैन सेलेक्ट योर लैंग्वेज। तुम्हारे मराठी बोलनी है मराठी तुम बोलोगे, गुजराती बोलनी है, बंगला बोलनी है, और किसी को और नई लैंग्वेज निकाल देनी है, कंप्यूटर लैंग्वेज बना देनी है तो वो बना दे, कोडिंग लैंग्वेज बनानी है।
you select your religion, you select your God, you select your work. तो ये फ्रीडम आपको किसी भी नहीं, किसी पशु पक्षी में, उनको न स्कूल जाना पड़ता है, न मंदिर जाना पड़ता है, न उनके भगवान है, न कुछ है। ये सब हमारे लिए क्यों है? बिकॉज वी हैव ए फ्रीडम। और इसीलिए अभी अपने 6ठे अध्याय में वो देखा कि हमें अपने आत्मा का उपयोग करके हमें अपना उद्धार करना चाहिए। हमारे लिए दोनों फ्रीडम है, हम गिर भी सकते हैं और ऊपर भी उठ सकते हैं। ये मनुष्य योनि ऐसा गेट है कि यहाँ से आप ऊपर जाके आप देव योनि भी प्राप्त कर सकते हो, और आप पतित होके फिर से पशु योनि में जा सकते हो या किसी गलत योनि में जा सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध के अनुसार आपको सिर्फ जन्म मिलता है, आपको एक कुटुंब मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। उसके बावजूद भी आप देखो, कोई कहता है साधु सन्यासी, कई सन्यासी, साधु सन्यासी हमने देखे बहुत अच्छा काम करते करते बहुत फेमस, और फिर वहां से ऐसा पतन होता है कि जेल में जाना पड़ता है उनको। हमारे सामने कितने किस्से हैं। इतना बड़ा आश्रम बना दिया, इतने बड़े उनके शिष्य हैं, वो कोई हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? उनमें कुछ तो तप होगा, कुछ स्ट्रेंथ होगी, कुछ स्पिरिचुअल होगा, कुछ उन्होंने, देखो धोखेबाजी करके इतना सारा नहीं होता है, लेकिन फिर वो उसको संभाल नहीं पाए, वो फिर घमंड आ गया और उनका पतन भी हो गया। तो यहाँ जो है वो दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम, या जो फ्री विल कहते हैं, वो दैट काइंड ऑफ फ्री विल इज देयर। तो प्रारब्ध के हिसाब से हमको जन्म मिलता है, हमको शरीर मिलता है कि हम स्वस्थ रहते हैं, ये है। लेकिन उसके बाद तुमको कैसे काम करना है, अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है, मतलब सब होने के बावजूद भी हम इतना फैसिलिटी होने के बावजूद भी कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, या हमारे दिमाग में गलत विचार आ जाते हैं, गलत। तो हमारा प्रारब्ध भी हमको करवाता है, हम किस सोसाइटी में है वो भी करवाता है, और कई बार हमारे अपने जो हम किस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पूरा संसार जो है मनुष्य के लिए इट्स ए प्लेस ऑफ अट्रैक्शन। अब किसी को ऐसा लगता है कि चलो यार वो थोड़ा ड्रिंक लेके तो देखें शराब का, तो एक बार करके देख लिया, तो फिर उस पहली बार जब जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता होगा उसको, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। अच्छे परिवार से है तो भी गलत आदत पड़ जाती है, कोई तो इस तरह का है, और कोई सत्संग में जुड़ जाता है। तो प्रारब्ध के हिसाब से हमको शरीर मिलता है, हमको परिवार मिलता है, हमको सब मिलता है, लेकिन फिर हम उसका सदुपयोग कैसे करते हैं वो उसकी जिम्मेदारी अपनी होती है, और वो हम कैसी कामनाएं उत्पन्न करते हैं वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल से। हाँ, तो आज तो मेरे ख्याल से ये सेशन एक क्वेश्चन मेरा है। यस, हम कौन है? हम कौन है? यस, वेरी गुड। अब हम कौन है जो कलेक्ट करते हैं वो हम कौन है? हम कौन है, ये बहुत बड़ा है। तो देखो, ये आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक चीज तो ये जरूर है कि हम शरीर नहीं है। डू यू एग्री पुष्पा जी? कैसे, हाउ डू यू एग्री? बिकॉज देयर इज बोलते हैं देयर इज आत्मा है, आत्मा ही सब है। आत्मा नहीं, देखो अभी हम जो बात करेंगे ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। बोलिए। तो अब जैसे ये कहता हूँ कि ये मोबाइल मेरा है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो मोबाइल मेरा है, मतलब मैं मोबाइल नहीं हूँ। ओनर ऑफ मोबाइल बट आई एम नॉट मोबाइल, ठीक है? तो अगर ये कहता हूँ कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा नाक है, मेरा शरीर दर्द करता है, या कुछ भी है, तो जब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा हाथ है, तो हाथ मेरे शरीर से अलग कुछ है, तो कोई मतलब देयर इज समबडी हु इज ओनर ऑफ दिस बॉडी, बट बॉडी इज नॉट मी। ठीक है, हमारी लैंग्वेज से ही हम इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये शरीर मेरा है बट मैं शरीर नहीं हूँ। हुआ ना? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। अब ये कहते हैं तो हम क्या हैं? तो मेरा मन, तो कहता है आज मेरे मन में ना मालूम कैसे विचार रहा है, आज मेरा मन क्यों उदास है। फिर बुद्धि, तो बुद्धि के बारे में ये कहता है कि ये देखो, ये जितना मैंने ये व्यापार बढ़ाया है, ये जो कुछ काम किया है, मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया है, ये मेरी बुद्धि है। या मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, उसकी मेमोरी ये है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अहंकार, ठीक है? तो अहंकार जो है ना, वो वहां पे मैं आ जाता है। एक वो अहंकार है, वहां पे हम कह सकते हैं कि अहंकार
इज समथिंग जिसे एट वन लेवल वी कैन आइडेंटिफाई कि मेरा अहंकार मैं हूं, ऐसा दैट इज एट वन लेवल। क्योंकि अहंकार को सब चाहिए, अहंकार ही ये कहता है कि ये मेरा मन है, ये मेरा बुद्धि है। अगर अहंकार नहीं है तो ये सब नहीं होगा। बट बियॉन्ड अहंकार, अहंकार इज आल्सो एक, इसको कहते हैं सत असत विवेक या नित्य अनित्य विवेक। तो जो परमानेंट है वो मैं हूं, और जो ऑलवेज चेंजिंग है, तो अपना जो अहंकार है ना, देखो मन भी, बुद्धि चेंज होती है, शरीर चेंज होता है, बूढ़ा होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, मर जाता है, बुद्धि चेंज होती है, मेमोरीज चेंज होती है, कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता है। अहंकार भी चेंज होता है, कभी कभी हम एकदम डिप्रेस हो जाते हैं तो हमारा अहंकार भी कम हो जाता है, कभी कभी कुछ बड़ा अचीवमेंट हो गया तो अहंकार भी बढ़ जाता है। तो अहंकार इज आल्सो वेरिंग। तो अब जो है कि ये जो है मैं कौन हूं, तो ये जो सब देख रहा है ना, जो समझ रहा है कि ये चेंज हो रहा है, तो मेरा अहंकार जो चेंज हो रहा है वो भी somebody is realizing कि आज मालूम नहीं मेरे को क्यों अहंकार आ गया, या ये हो गया, या मेरा आंखें कमजोर हो गई है, या मेरा मन, मेरी मेमोरी अब कम हो गई है। तो somebody is seer। तो वो जो सीयर जो है, जो ये सब महसूस करता है, एक्सपीरियंसर है, जो सीयर है, जो महसूस करता है, वो मैं हूँ, वो हम है। और वो अनित्य है, वो आत्मा है अल्टीमेटली। और उस आत्मा को अगर पहचानना है तो हमको धीरे धीरे अपने अहंकार को भी डिसॉल्व करना। अहंकार इज ए वॉल बिटवीन आत्मा एंड दिस बॉडी, ऐसा एक वो इंटरफेस है। और वो जैसे ये शरीर की दीवारें हैं, अरे कमरे की दीवारें हैं, और वो दीवारें टूट जाती है तो वो आकाश के साथ आकाश एक हो जाता है, ऐसे वो अहंकार की दीवार टूटते ही आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाता है और मोक्ष हो जाता है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। तो जो सीयर है, जो ये सब चीजों को देखता है, जो हमारे शरीर को भी देखता है, हमारे मन को भी देखता है, हमारे बुद्धि को भी देखता है, हमारे आत्मा को भी देखता है, वो देखने वाला जो है वो हम है, या वो मैं हूं, ऐसा है। लेकिन ये बोलते हैं ना कि आत्मा एक आत्मा है, सब में एक ही आत्मा है, बोलते हैं ना। यस। हाँ, तो फिर मिस जैसे मेरा कलेक्शन आज का किया हुआ और आपका किया हुआ कलेक्शन नेक्स्ट जन्म में होगा, चाहे ये जन्म का किया, नेक्स्ट आप पीछे किए हैं, तो फिर आत्मा एक कैसे हुआ? आत्मा तो सबका अलग अलग हुआ ना। ये मेरे को समझ में कभी नहीं आता है। बोलते हैं कि हमारी ही आत्मा जो है वो कलेक्ट की है कुछ, जो नेक्स्ट जन्म में जाएगी, उस जन्म में जाएगी। हमारी आत्मा आपकी आत्मा नहीं हो सकती, तो आत्मा सबका एक कैसे हुआ? ये मेरे ख्याल से यही प्रश्न वत्स साहब ने भी पूछा था कि आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेती है, और उसका मैंने थोड़ा समझाने का ट्राई किया था, थोड़ा और करता हूँ कि आत्मा जो है न पाप करती है, न पुण्य करती है, न पुनर्जन्म लेती है, न वस्त्र बदलती है, कुछ नहीं करती है। आत्मा नहीं, वो हम वो समझे हुए हैं। कुछ आत्मा कुछ नहीं करती, कुछ कलेक्ट नहीं करती, तो एक क्या चीज है? कौन है कौन है जो मिस पुनः जन्म लेती है, कलेक्ट करती है? कलेक्ट करने वाला है कौन? वो मैं बताता हूँ, वो जीवात्मा है। और यहाँ पे ये जो अपने गीता में जो है वो मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। कुछ लोग जीवात्मा के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग आत्मा के बारे में बोलते हैं, लेकिन उसको कई जगह पे डिफरेंशिएट नहीं किया है, इसलिए हम हर बार कंफ्यूज होते हैं। जीवात्मा जो है वो हमारे अंदर का एक सूक्ष्म शरीर है जो डिजायर्स से बनता है, और वो जो है वो ऐसे, वो भी मटेरियल है, वो मटेरियल कैसा है उसका भी काफी बड़ा विज्ञान है, जिसके लिए एक अलग सेशन चाहिए। लेकिन यूं समझिए कि वो जो शरीर बना है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं और जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो भी मतलब इम्पेरिशेबल जैसा, वो भी पेरिशेबल नहीं है, वो भी मरता है, उसको भी नहीं काट सकते हैं, उसको भी नहीं मार सकते, वो भी, ये शरीर जल जाएगा, सब हो जाएगा, शरीर मर जाएगा, लेकिन वो जब तक वो डिजायर है वो जीव है, और डिजायर को एनर्जी जो देने वाला है वो आत्मा है, और आत्मा तो हर जगह है ही।
तो जो जाता है और पुनर्जन्म जो लेता है वो जीवात्मा आत्मा नहीं लेता है, लेकिन जीवात्मा है। जीवात्मा को इंग्लिश में हम सोल कह सकते हैं और आत्मा को कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस मींस दैट पावर। तो जो जीवात्मा है और वो तब तक वो जन्म लेता रहेगा, वो तो मृत्यु वो जिस मिट्टी से बना है वो मिट्टी ऐसी है कि उसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, पेरिशेबल नहीं है, बिल्कुल पेरिशेबल नहीं। तो वो जो जीवात्मा है, तो वो आप जैसे जैसे डिजायर करोगे, जैसे उसको पुण्य भी लगता है, पाप भी लगता है, क्योंकि ही इज द ड्राइवर ऑफ योर बॉडी। अगर हमने किसी की हत्या कर दी तो बॉडी तो उसको फांसी लगा दो, जला दो, कुछ भी करो, बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पाप हुआ या पुण्य हुआ वो जीवात्मा कलेक्ट करता है और उसको भोगने के लिए उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो आत्मा तो न जन्म लेती है, न मरती है, न कार्य करती है, न कुछ। आत्मा इज एनर्जी। जैसे मैंने बताया कि अपने घर में अगर एक इलेक्ट्रिक का पॉइंट है तो इट्स एन एनर्जी। अब उसमें अगर आप मिक्सी लगा दो, जैसा बॉल डालेंगे वैसा जो उतना पावर आएगा। हाँ, तो वो जो जीवात्मा है इट इज पावर्ड बाय दैट आत्मा, लेकिन वो आत्मा उसके साथ जाएगी, इसलिए वो आत्मा का पुनर्जन्म ऐसा। बट दैट इज वेयर वी आर मिस्टेकन, और ये हमारा बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और हम इसकी वजह से बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आत्मा तो जन्म नहीं लेती है, आत्मा ये है। तो लेकिन आत्मा अलग चीज है, जीवात्मा अलग चीज है, सोल अलग चीज है। और जो जीवात्मा है वो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आप अच्छा काम करते हो तो भी जीवात्मा की जिम्मेदारी है, बुरा करते हो तो भी जीवात्मा की जिम्मेदारी है, और उसको कर्म फल भी जीवात्मा भोगता है। लेकिन जैसे बताया वो अंधा और लंगड़ा जैसा, कि अंधा देख नहीं सकता है, तो जीवात्मा बॉडी के बिना काम नहीं कर सकता है और बॉडी जीवात्मा के बिना काम नहीं कर सकती है। अंदर जीवात्मा आता है, वो जैसे ऑर्डर देता है ऐसे बॉडी विल डू द मूवमेंट। लेकिन जीवात्मा ऑन इट्स ओन, इसलिए जीवात्मा को जन्म लेना ही पड़ता है। जब तक जन्म नहीं लेता है तब तक मालूम नहीं कहाँ भटकता रहता होगा, आई डोंट नो। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट जो भूत प्रेत वगैरह कॉन्सेप्ट आते हैं वो भी होगा। लेकिन उसको जब तक वो अलग नहीं हो जाता है तब तक वो जीवात्मा को दूसरी बॉडी धारण करनी पड़ती है और पुनर्जन्म लेता है। लेकिन पुनर्जन्म लेने वाला जीवात्मा है, न कि आत्मा है। मेरा भी एक क्वेश्चन है प्लीज। यस, हाँ मेरा भी। अच्छा, गीता में योग की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है किसकी? गीता में? जैसे विषाद योग हो गया, हाँ हाँ, भक्ति योग हो गया, सांख्य योग हो गया, विश्व दर्शन योग हो गया, पूरा है ना, ध्यान योग, तो क्या डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन डेफिनेशन? ऑफ योग सिर्फ यही है कि विषाद को भी अगर आप योग कहते हो, जहाँ डिप्रेशन आ जाता है, तो आप जो भी करते हो, योग का मतलब जुड़ना। अगर आप किसी भी तरीके से परमात्मा से जुड़ सको तो वो योग है। डेफिनेशन ऑफ योग एज पर गीता वही है। आप सांख्य योग तो सांख्य के पद से भगवान से जुड़ो, भक्ति योग तो भक्ति योग से जुड़ो, आत्म संयम तो आत्म संयम। और अर्जुन ने अपना विषाद को भी एक साधन बना के कृष्ण भगवान को अपना गुरु बनाया और उनका शिष्य बनाया। और विषाद योग से भी उसने अपने कल्याण की बात पूछी। वो उसमें योग इसलिए उसमें जोड़ दिया गया है कि उसने कभी अपनी वो बात नहीं पूछी, हमारा कल्याण कैसे होगा, मैं ईश्वर से कैसे जुड़ सकता हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा। इसलिए नहीं, ये बात उसने पूछा है बीच में एक बार कि मेरा कल्याण कैसा हो, मेरा कल्याण कैसा होगा, मेरा एक बार कल्याण पूछा कैसा है। होगा। हाँ जी। ये हर कोई जो है, हर कोई विषाद में आ जाता है, तो हर किसी का योग विषाद योग, हर किसी का विषाद योग नहीं बन जाता है। लेकिन अर्जुन का विषाद योग बन गया क्योंकि उसने विषाद में भी ये विषाद आ गया था। कल्याण कैसे होगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ भी योग, खास करके ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हर जगह योग लगा दिया है, कर्म योग लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है, भक्ति योग, ध्यान योग, तो योग ये विश्व दर्शन योग, कुछ भी करके आप ईश्वर के साथ कैसे जुड़े, वो योग है। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा बताया, लेकिन मेरा संशय है, दो संशय हैं दवे साहब। हाँ जी। उसमें क्या है, 12वें श्लोक में आपने जीवात्मा और आत्मा का पूरा इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैं समझ गया हूँ जो संशय था। उसमें थोड़ा सा एक बारीक सा संशय रह गया है। क्या जीवात्मा भी हमारे देह में कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त होती है? देखो ये है ना जीव, ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा।
जीव उसको प्राप्त नहीं होती है, उस हिसाब से प्राप्त नहीं होती है। बट जीवात्मा मतलब ये कहते हैं कि जीवात्मा कौमारम यौवनम जरा, के कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था को जैसे, तो वो शरीर प्राप्त होता है, लेकिन वो जो जीवात्मा है वो महसूस करती है, कि ये हमारी कुमार अवस्था थी, ये यौवन अवस्था थी, अब जरा अवस्था हो गई है। और इसीलिए जीवात्मा को ये जो मृत्यु जो होती है, तो जीवात्मा को जब ये लगता है कि मेरे तो इतने डिजायर हैं, मुझे तो ये काम करना भी बाकी रहेगा, ये करना भी बाकी रहेगा, ये मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मेरे को ये करना था, और अब वो शरीर को भगाना भी चाहती है। जीवात्मा ऑर्डर भी देती है कि तुम भागो, ये करके आओ, ये करके आओ, दिन रात मेहनत करो, लेकिन शरीर अब जवाब देता है, थक गया है, कहता है अब मैं पहले जैसा काम नहीं कर सकता हूँ। तब जीवात्मा महसूस करती है कि ये शरीर तो बुढ़ा हो गया। जब जवानी थी तब वो 24 आवर्स में 20 घंटा काम करता था, 2-2 शिफ्ट में काम करता था, अब मेरा काम नहीं करता है, इतनी वो नहीं करता है। तो फिर जब ये लगता है कि अब ये कपड़ा पुराना हो गया है, फटने आ गया है, तो इट इज बेटर टू चेंज इट। तो उस हिसाब से कई बार वो जीवात्मा को ये महसूस होता है कि अब ये जो मेरा वस्त्र है वो फटने वाला है, तो वो धीरे धीरे उसके बीच में एक लिंक होती है, प्राण की लिंक क्यों कहते हैं, वो जो जीवात्मा और शरीर को जुड़े हुए होती है, तो वो अपने आप वो वीक हो जाते हैं। एंड देन फिर जीवात्मा को होता है कि मेरे को इस शरीर से निकल जाना है, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, अब ये कपड़ा मेरे काम का नहीं रहा, फेंक दो, मेरे को नया वस्त्र धारण करना है। एंड दैट इज व्हाई जीवात्मा गोज टू द न्यू। तो इसमें जो उदाहरण दिया है कि यहाँ प्राण तो कॉन्शियसनेस हुआ ना, नहीं, प्राण कॉन्शियसनेस नहीं है, प्राण भी प्राण जो आत्मा है ना, नहीं तो बोलते हैं ना कि जब तक बॉडी में कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है, तभी तक आपका बॉडी काम करेगा। कॉन्शियसनेस जिस दिन खत्म हो जाएगा, बॉडी खत्म हो जाएगा। करेक्ट। देखो इसमें चलो ये प्राण में अभी ये लाने जैसी बात नहीं थी, फिर भी ले आया, बट एट प्रेजेंट लेट अस कंसीडर प्राण एंड आत्मा इज सेम, के वो उसको वो करती है। बट एक्चुअली ये शरीर की जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी जो है ना, उसमें प्राण जो है वो भी आत्मा नहीं है, प्राण भी निर्जीव चीज ही है। लेकिन प्राण, देखो प्राण भी एनर्जी है और आत्मा भी एनर्जी है, लेकिन प्राण जो एनर्जी है वो इट इज सिमिलर टू लाइफलेस एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये एनर्जी है, लेकिन उसमें लाइफ नहीं है। अभी मैं आपको जैसे बताता हूँ कि एक रोबोट बना लिया हमने, यंत्र मानव बनाते हैं ना, रोबो बना लिया, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो चलता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाल दिया, सब काम करेगा, हम जो जैसा प्रोग्राम किया ऐसा करेगा, लेकिन हम उसको सजीव नहीं कह सकते, वो फिर भी निर्जीव है, राइट? सजीव क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो लाइफलेस है, और जो सजीव की एनर्जी है वो लाइफ वाली एनर्जी है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सजीव एंड निर्जीव? कि सजीव का एक मिनिमम उसके 2 डिफरेंस बता दें तो सजीव कैन ग्रो, निर्जीव कैन नॉट ग्रो, उसका जो साइज का बना है उस साइज का रहेगा। एंड सजीव कैन रिप्रोड्यूस, निर्जीव कैन नॉट। एक रोबोट बना दिया तो वो अपने वो पैदा नहीं कर सकेगा। तो एनर्जी दोनों है, आत्मा भी एनर्जी है और इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है। तो ऐसी जो इन बिटवीन जो प्राण एनर्जी है जो हमारे इसको चलाती है, जैसे हृदय को पंप करना है या लंग्स को ये करना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए जो एनर्जी है विच इज नॉट, उसको स्पिरिचुअल भाषा में प्राण और आत्मा को थोड़ा डिफरेंशिएट किया है कि प्राण इज एनर्जी which allows the body to run as a machine, but that is a lifeless energy, and atma is a living energy which makes a body living, usko life, sajiv जिसे कहते हैं वो एनर्जी है। बट आई थिंक टाइम बीइंग वी शुड नॉट इसको इंटरफेयर करने जैसा नहीं है, क्योंकि वो एक शंकराचार्य रचित विवेक चूड़ामणि करके एक किताब है, पंच प्राण वगैरह, वो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, और उसने ये दिया है कि इट इज एन इंटरफेस। बट आई थिंक लेट अस अभी आत्मा को ही एनर्जी मानो और आत्मा को ही सोर्स ऑफ वो मानो तो चलेगा। I have two अच्छा, points to add on. So This Omkar Manda is adding one additional element. Okay, he says we should start from Dvaitam to Advaitam. Okay, we should have the body element, body and mind complex. Yes, yes. So assuming let us say body is Atma.
we shall start body is Atma. So when we are sleeping, are we able to do anything? Or when we don't have our consciousness, we have hands, we have legs, we have ears. So during unconscious state, are we able to do our daily activities? So there should be some other element which is driving our daily activities. That he says as limited consciousness, which is limited by the unlimited consciousness, which is Paramatma. Unlimited consciousness is Paramatma. Unlimited consciousness is like Atma. controlling this limited consciousness. Limited consciousness is Atma. But that is also not driving. That is also not driving. That is also akarta abhokta hai. But the Atma is, as we told, it is a limited consciousness or consciousness. But the soul जिसे कहते हैं, the desire, that mind body complex जो आपने बताया, mind body complex, and body is a different body. As I was trying to explain, body on its own cannot do anything. Hand on its own cannot do that. It will pick up something which I don't want to pick up. Hand will pick up only when I say that I want to pick up this specs. Okay, so that is a soul which is karta and which is enjoyer and which is doer. Correct. And it is doer because it has got desires. Okay, and desire is energized by consciousness. So it is powered by consciousness, but consciousness is not involved in doing the thing. The activity is done by desires. You know, right, as I told that you have got a power point, electricity point, plug point is there. So on its own electricity, but if you want to switch on the fan will run. If you put on this thing, it will. So your desires is a subtle body. See, that itself is again a entirely different subject on which again you can speak for days and days. But in brief, we have got a gross body, which is not having as a gross body, it cannot do anything. It is driven by desires. So desire plus Atma is a soul which drives the body to do certain things. Okay. So when you are sleeping, then there are again various these things. Sleeping again, there is a dream state and there is a deep state. So when you are in deep sleep, your Atma is allowing all other functions to do, but your desire sleep, it is something like Samadhi. Jisme Samadhi, you really become desireless, and that is why you become very happy when you are in deep sleep. Deep sleep mein, it is the climax of happiness. अगर तुमको कोई कहता है कि when do you feel the maximum happiness, तो आपको बहुत गहरी नींद आ जाती है, और उस समय जो happiness मिलता है, ऐसा happiness you will never enjoy during your awaking state. Because उस समय you are desireless. तो भगवान ने आपको एक practically वो भी बताया है कि when you become desireless, how much happiness you derive. And ये हम जो unhappiness and misery जो होती हैं because of desires, so that we can compare. So this is also one way of, see, God is teaching with practical example. It doesn't have a language or this thing, but you observe everything. How do you feel when you are in deep sleep? What do you feel when you are in dream state? What are you feeling? Are you happier when you are awake, or are you happier when you are in deep sleep? And if you think that you are happier in your deep sleep, means if you don't have desire, you will be the happiest person. Sir, Dave sir. Yes, sir. Oh, Mrs. Ramseshan jo hai, she's very close to that Paramatma Nanda ji. उनका ये सब इसका नोट्स लिख के रखा है विवेक चूड़ामणि का. परमात्मा जी का. परमात्मा जी का तो नहीं है, लेकिन मेरे पास चिन्मयानंद जी का है, बहुत 2 वॉल्यूम का है विवेक चूड़ामणि. अच्छा. एंड इट इज वर्थ रीडिंग. मतलब उसको अगर पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग इज मतलब अनफोल्ड करके रख दिया है सब. इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है. अच्छा. बहुत बढ़िया है, चिन्मयानंद नेशन का ही है.
अच्छा अच्छा। अगर आप चाहे तो यू कैन ब्रिंग दोस 2 वॉल्यूम्स हैं उसका। ओहो, पार्ट 1 पार्ट 2। नहीं बहुत अच्छा लगता है, आप बात करने में इतना बढ़िया समझाते हैं। Really, you are really great. We are so blessed भाई साहब। नहीं देखो, आई एम पुटिंग माय मतलब एफर्ट्स जितना, एंड दैट नहीं इज नहीं, व्हाई इससे मतलब इजीली कोई समझा नहीं सकते हैं। नहीं, मेरा क्या है कि दैट इज व्हाई वो जो बड़ा बड़ा टर्मिनोलॉजी जो स्पिरिचुअल वो अपना अपना लेवल का टर्मिनोलॉजी सिंपल भाषा में मतलब हाउ टू मेक इट अंडरस्टैंड इजी और कैसे वो कर सकते हैं उस तरह का है। बाकी तो इसको जितना कॉम्प्लिकेट करना उसका कर सकते हैं, बट दैट इज व्हाट। अभी देखो मेरा जो आज का जो एक था ना, आई थिंक वी विल कंटिन्यू 2-3 ये व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सांख्य योग फॉर अवर डे टू डे लाइफ, वो तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। वो आत्मा परमात्मा ये वो सब तो बात कर ली, लेकिन हम उसको कैसे यूज करेंगे, हाउ इट इज गोइंग टू यूज, हाउ इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस। तो आज तो अभी तो 6:15 तो बज गए हैं, भाई आज का सेशन बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में, बट नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कर्म फल बहुत है इसमें, बहुत सारा है। नहीं वो तो देखो मेरे ख्याल से 2-3 जाएंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम में ये जो सांख्य योग है वो ये गिरीश ने अच्छा समझा दिया था कि बिगिनिंग में क्यों लिया। वो नारायण साहब का एक डाउट था which he tried to explain। हमको कैसे मतलब, और अभी जैसे एक मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ हमारा आइडेंटिफिकेशन कैसे करना चाहिए। कि अभी हम जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, अभी तक हम सब ने बोले कि हमारा ये शरीर है, हम शरीर है, हमारे अंदर आत्मा है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ना। लेकिन वो जो कपड़ा वाला जो वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय जो श्लोक है उसमें ये कहता है कि ये जो शरीर है वो कपड़े जैसा है और वो मैं कपड़ा बदलता रहता हूँ, ऐसा सोल बोलता है, जीवात्मा बोलता है। तो अगर हमने कपड़े पहन रखे हैं तो डू वी आइडेंटिफाई अवर सेल्फ ऐसा कि मैं कपड़ा हूँ और कपड़े के अंदर मिस्टर सो एंड सो है, वी डोंट आइडेंटिफाई लाइक दैट, ठीक है ना। तो अभी हमारा आइडेंटिफिकेशन ये नहीं होना चाहिए कि शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन हमारा आइडेंटिफिकेशन ये होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ या मैं सोल हूँ एंड आई एम गिवन दिस बॉडी टू ट्रांजैक्ट इन द वर्ल्ड। संसार के साथ व्यवहार करने के लिए भगवान ने मेरे को शरीर दिया है, बट आई एम नॉट शरीर। शरीर के अंदर आत्मा है ऐसा नहीं, आत्मा को एक शरीर मिला है जिसकी वजह से मैं ये काम करता हूँ। अगर आप इतना अपना परिचय ही बदल देते हो कि मैं आत्मा हूँ और मुझे शरीर दिया है, और एक ये परिचय है कि मैं शरीर और शरीर के अंदर, दैट विल मेक मिरेकल्स। तो ये क्या कर सकते हैं हम, एंड हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फिलोसॉफी सांख्य योगा ऑन आवर डे टू डे एक्टिविटीज, दैट वी विल, भगवान ने चाहा तो अगले सेशन में इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। और बहुत सबको नमस्कार बोलती हूँ। नमस्कार, स्वागत है। वेलकम टू इंडिया। स्वागत है। थैंक यू। इसलिए सबसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए हम लोग जुड़े अभी पीछे से। और घर 6 महीने बाद खोला है तो बस पूछिए मत क्या हाल है। अरे नहीं, पूरी किचन में दीमक लग गए तो वो ट्रीटमेंट चल रहा है। फोन काम नहीं कर रहा था, इंटरनेट खत्म था, अभी आज ठीक हुआ इंटरनेट। मोबाइल भी इनका काम नहीं कर रहा था 6 महीने से, इंडिया का तो था नहीं। तो सब बस पूछिए मत, हमारा हाल बहुत खराब है, नींद भी नहीं हुई है हमारी, सारा दिन जग रहा है। तो मन पर हमारा मन था आप लोगों से मिलने का, इसलिए जुड़ गए अभी। बहुत अच्छा करिए, देख के खुश हो गए, आ गए। चलो आज की चर्चा भी बहुत अच्छी रही है, आपको बताने के लिए मैं कहता हूँ शायद सबने बहुत एंजॉय किया और हर तरह के, और अभी चलती, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग किया है वो भी चाहिए। तो जब हमने चालू किया तो रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर दीजिए, अभी ऑफ कर दीजिए। हाँ अभी ऑफ कर दीजिए। नहीं ये सब डिलीट हो जाएगा जो